भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, जहां हर रंग, हर सुर, हर धड़कन में बसती है संस्कृति, जहां हर राग में इतिहास गूंजता है, हर नृत्य में दर्शन झलकता है और विरासत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। IGNCA पेश करता है संस्कृति यात्रा, भारत की मूर्त और अमूर्त धरोहरों का अद्भुत सफर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संस्कृति यात्रा। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के अपने पहले सेगमेंट विशेष में हम आपको लेकर चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, जहां के सभी 8 राज्य अपने नेचुरल ब्यूटी, फोक ट्रेडिशंस और डिफरेंट लाइफस्टाइल के लिए फेमस है। इनमें से खूबसूरत राज्य मणिपुर है, जिसे जूल ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। यहां मैथी कम्युनिटी के साथ ही नागाज और लगभग 20 से ज्यादा ट्राइब्स अपने अपने यूनिक ट्रेडिशन से मणिपुर को डाइवर्स बनाते हैं। यहाँ के लोग हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स बनाने में माहिर होते हैं, साथ ही नेचुरली एथलेटिक होते हैं और स्पोर्ट्स के प्रति रुझान रखते हैं। एजुकेशन और डेवलपमेंट के चलते जहां शहरों का जीवन मॉडर्न हो चुका है, वहीं गांव और कस्बों में अभी भी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल देखी जा सकती है। तो आइए देखते हैं फिल्म मणिपुर द ज्वेल ऑफ द ईस्ट के कुछ अंश। Manipur, lush, green and very beautiful. A state whose very name translates to mean the jeweled land. This is a state of valleys and small hills. A state of rich culture and very hardy people. It is a state less known and seen, even less by people from other states of our country and the world. But there is life beyond insurgency. A life beyond the guns, where lotuses bloom and nature's bounty can be witnessed. A place where people sing, dance and enjoy during the many festivals. This is a land of rich handicrafts and sonorous culture. A land whose every inch is worth exploring. This beautiful land is inhabited by equally interesting people. The Meiteis, who are in majority here, are a people of rich heritage, history and culture. The Shaheed Minar upholds the tribal martyrs who fought the British. The 2 memorials at Imphal Dimapur Highway and Imphal Ukhrul Road highlight how our Manipuris fought even during the Second World War. Then there is the world-famous Kangla Fort, which was the seat of the Manipuri kings, starting from the mythical god king Nongda Lairen Pakhanba in 33 AD. Further off, one can see the famous INA Memorial at Moirang, the first place in India where Netaji Subhash Chandra Bose hoisted the flag of the Indian National Army. Many other monuments speak volumes about the bravery of the Meiteis of Manipur. If the state's history is rich, the culture is equally vibrant. Even their dhol beating, or dhol cholom as it is called, is an art which is perfected after years of practice. Dressed in traditional poloi, the women dance with amazing femininity and grace. Similar kinds of regal dresses and ornaments are also worn during the state's most famous boat race competition called Hiang Tanaba. This competition is especially held during the state's September festival Haikru Hitongba, which is a very joyous festival revolving around the famous Sri Gobindaji temple. Right from the morning, one can see ladies decked in traditional wear preparing the items for worship and celebration. Many rituals follow before the idol of Govindaji
who is considered another form of Vishnu, the preserver according to Hindu mythologies, is carried to the racing site, which is a 16-meter long narrow canal along the temple. The Lai Haroba dances are stylized and ritualistic, and the dancers are required to wear traditional clothes. Goddess Panthoebi is another goddess whom the Manipuris have immense trust in. Considered to be an embodiment of female Shakti, Panthoebi and her mate Nongpok Ningthu are taken out in huge processions just before the entire country celebrates Durga Puja. Another festival which sees the entire Meitei community singing and dancing on the streets in long processions is the 10-day-long Rath Yatra. In fact, the Rath Yatra celebrated in Manipur is on such a large scale and so joyous that it can rival Orissa, the state in which Jagannath Rath Yatra is perhaps one of the 3 biggest festivals. Played extensively between March and July, the traditional game of Kang sees the players pushing a special seed of a creeper called Kangkil across smooth surfaces. Apart from the big festivals, the Manipuris celebrate the Chairauba or the Manipuri New Year in April with much festivity and prayers. As a part of the ritual, people climb on their nearest hilltops with the belief that this would enable them to achieve great heights in their worldly lives. The Manipuris also have several domestic celebrations. Marriage is another happy occasion which calls for much festivity. In Manipuri Meitei marriages, the brides wear the traditional poloi and many ornaments, while the bridegrooms wear white dhoti kurta with a kayat on their head. The Manipuri style of martial arts called Thangta is another unique aspect of life here. The Meiteis have many more wonderful qualities. Of them, the art of making pottery without the use of the potter's wheel, special dolls and the beautiful handloom items need special mention. These can be found in their unique Andhra Museum. In fact, the Andhra Museum can be called a mini Manipur with houses of each community of the state having been built here. Traditional pottery and items of everyday use of each community too are preserved here. Also present in this same complex is a doll museum wherein all the dolls wear the dresses of various tribes of Manipur. Much of the fish that is sold here can be traced back to the famous Loktak Lake, which sustains thousands of fishermen families. Compared to the refined festivals and dances of the Meiteis, the Tangkhul Nagas, who constitute the majority people living in the hilly areas of Manipur, extending from Ukhrul to Nagaland, live a more robust life. The area which these people inhabit is hilly, and thus the people, who are mainly agriculturists, have to opt for terrace cultivation. The Tangkhul Nagas are an industrious tribe. Even in the hilly, uneven land, they grow everything from paddy to pineapple and ginger on the slopes. Dressed in colorful shawls, lungis, and with plenty of ornaments, including interesting headgear, armbands, leg bands, belts, necklaces, and earpieces, and armed with spears and daws in their hands, the Tangkhul Nagas dance with gay abandon. The daily life dress of the Tangkhuls is a little different from their dance dress. This is the dress of the Tangkhul male. The dress of the Tangkhul female is equally ornate. The best place to meet the Tangkhuls is the Hungpung village, which is their biggest village, inhabited by over 8,500 Tangkhul Nagas. A little further inside, one sees stones with footprints of the Manipur Maharaja. These stones are a proof of the close affinity that existed since time immemorial between the Manipur Meiteis and the Tangkhuls.
Apart from the cane crafts, the Tangkhuls are famous for their black pottery, which is unique to their community. This is Mr. Somi Shimre, a famous black pottery maker. The Tangkhuls follow Christianity. However, going to churches and celebrating Christian festivals and practices have not made them give up their old pre-Christian faith totally. For instance, the Paka Fire Puja is till date widely performed for the peace and welfare of the villages. Another traditional ritual is the Lead Festival, which sees much dancing. This is the traditional Faijak dance, which is performed specially during the Lead Festival. Likewise, marriages too often offer a glimpse of the traditional Tangkhul way of life. Although many people prefer church marriages, the traditional rituals are also followed. These include the initial partner choosing ritual, which takes place during the Lakhang Nui festival, which sees young marriageable women coming in full traditional attire and dancing. They are guarded by elderly family members. The young marriageable boys come and select their desired partners here. Next, the prospective groom's father and relatives go with the proposal of marriage to the selected girl's house. After a marriage is fixed, it is the turn of the bride and her family to go to the groom's house for the marriage. Many youngsters have gone out of the state to metropolitan cities and have consequently adapted many new changes in their lives. The dress of the men is equally colorful. The best occasions to see the complete dress are during dances. This particular dance is called Zaimai Popado. Apart from these 4 tribes, Manipur has over 19 other small tribes, each contributing to the colorful mosaic of the state. Today, although their capital city Imphal has become much modernized, the smaller towns, villages and hamlets still maintain their traditional values and ways of life. Even among the younger generation, many of whom have at some point or the other gone out of the state to work and study, do not hesitate to don their traditional clothes and break into clan-specific songs and dances whenever the occasion arises. This is laudable, especially because Manipur is a state with a very rich and unique culture. These must be propagated and highlighted. And who better can carry the culture and traditions forward but our youth? अभी आपने देखा मणिपुर की संस्कृति, त्योहारों, पारंपरिक रस्मों और लोक जीवन की झलक। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट संवाद की ओर। आज के संवाद में बात होगी एक ऐसे ऑथर से जिनका नाम हिंदी लिटरेचर में बड़े सम्मान से लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं द डॉन ऑफ हिंदी लिटरेचर, मुंशी प्रेमचंद के बेटे अमृत राय की। अमृत राय स्वयं एक रेप्यूटेड ऑथर, क्रिटिक और ट्रांसलेटर रहे हैं। उनकी लिखी हुई मुंशी प्रेमचंद की बायोग्राफी कलम का सिपाही हिंदी लिटरेचर की वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफी के रूप में देखी जाती है। उनकी राइटिंग में डेप्थ, इमोशंस और समाज की सच्चाई तीनों का ब्लेंड देखने को मिलता है। उन्होंने कई इंटरनेशनल ऑथर्स की क्रिएशंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके भारतीय रीडर्स तक पहुंचाया। तो आइए अब सुनते हैं महान साहित्यकार अमृत राय से हुई बातचीत के कुछ चुनिंदा अंश। आपके अपने संस्मरण प्रेमचंद जी उस पक्ष के जो उनके कृतित्व का जो पक्ष है
इस जीवन के पक्ष के ऊपर भी बहुत लिखा गया। आपने अपने आप कलम के सिपाही में पहले इतने मार्मिक वर्णन किए हैं उस काल के, लेकिन बात वहीं से शुरू कीजिए। तो सबसे बड़ी बात मुझे उस आदमी के बारे में लगती है, मैं प्रेमचंद से बिल्कुल एक स्तर पर अपने को अलग करके भी देखता हूँ, वरना ऐसी किताब न लिखी गई होती। सही, इसकी जो चुनौती रही होगी, इसीलिए तुम ये भी देखोगी कि ये किताब लिखी जा रही है, छपी है, समझो। इट टुक मी अबाउट 6 years ऑफ वर्किंग ऑन Premchand and a lot of his other writing which had not been published, वो सबको करने में हमको 6 बरस लगा। Reader of Hindi and as someone who has grown up in the Hindi culture, and at the same time who deals with that other twin discipline called English criticism, I have not found, other than your own, other than Kalam Ke Sipahi, in which you have tried to go under the skin of the writer, exactly, and have therefore tried to recreate what his exactly. own development and evolution from within was, and how he was looking at both life and himself. And they निर्मला का टेलीविजन का वो बना था ना, रंगभूमि तो नहीं बन पाई, और गोदान, आपने वो देखा था टेलीवाइज्ड एक निर्मला का बना था? वो देखा था। कैसा लगा? I liked it. You liked it. I liked it. Very difficult. Very difficult. Very difficult role, लेकिन दोनों ने वो जो प्रीति खरे ने जो किया था, इसकी विष्णु खरे की जो बेटी ने बहुत अच्छा किया था, और उस बुड्ढे ने भी बहुत अच्छा किया था। It came out very well. It is perhaps the only good thing, क्योंकि नाहटा ने जो प्रेमचंद की कई कहानियों की उनका 2-1 को छोड़ के, और उसने बिल्कुल गोबर कर दिया। उसी समय रविदास की कई कहानियों के हुए थे, तो कलकत्ता से हम लोग लेके उसको करते, तो बहुत खूबसूरत हुए थे। रविदास की कहानी बहुत अच्छी बनी है। अमृत, ये जो पुस्तक है, अब आपने भाषा की बात की है, और आपने जो प्रेमचंद जी की भाषा है और आंचलिक भाषा, और ये इधर उपन्यासों में और खड़ी बोली की बात उसमें से निकल ही आती है, तो अब आपकी प्रशंसा आपके मुंह पर तो नहीं करनी चाहिए, छोड़ ही था, छोड़ देते हैं। तो जो बात पूछ रहे हैं वो, लेकिन ये जो आपने यहाँ पर भाषा की बात और ये ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ हिंदी और हिंदवी, तो मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो ये कि इस पर काम करने का जो अंदर से जो आग्रह था, उसका वो क्यों था, वो बताऊंगा। दूसरा तो मुझे मालूम है नेहरू फेलोशिप वगैरह उसकी, नहीं, और तो फिर इसका निष्कर्ष नहीं, तो वो उसका संबंध फिर नेहरू फेलोशिप से होता है। देखो ऐसा हुआ, एज ए क्रिएटिव राइटर आई वांटेड टू ascertain whether my kind of language had a future or no. Because if you remember in those early days, ऐसा रघुवीरी हिंदी का वो चला था कि लगता था कि क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, यानी क्या 10-50 बरस बाद कोई पढ़ेगा ही नहीं, यही इसी तरह की हिंदी पढ़ेंगे, गुट्ठल हिंदी एकदम। एक तरफ गुट्ठल हिंदी, दूसरी तरफ जिसको कि हिंदी के जो आंचलिक रूप हैं, या भोजपुरी पढ़ेंगे, या अवधी पढ़ेंगे, या मैलांचल की पढ़ेंगे, आदि आदि। हाँ, तो वो तो वो नहीं, उसमें कपड़ा तुमसे हमारा थोड़ा सा ये है, अलग से सोचना है। ये जो हिंदी का जो भाषा परिवार है ना, ये सारी बोलियां जो है हिंदी की, उसको बेहद समृद्ध करती हैं। और खैर हमारा तो नहीं, तो मैं तो ये नहीं कह रही हूँ कि समृद्ध नहीं करते हैं, नहीं, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन उनका आपस में जो संबंध है वो परस्पर वो संबंधित है, वो परिवार के सदस्य हैं, वो अलग अलग परिवार नहीं है, अलग अलग परिवार के सदस्य हैं, और इसलिए वो परिवार के सदस्यों की अपना व्यक्तित्व है, हर सदस्य का, और वो अपना, और वो इस मिल के जब वो पूरा इसको एनरिच करता है अपने मुहावरों से, अपनी कहावतों से, अपने तमाम इससे, तो ये भाषा इतनी संपन्न हो जाती है कि कुछ कहने की बात नहीं। हम नहीं समझते
कि संसार की बहुत भाषाएं मिलेंगी जो कि जिसको मैं हिंदी कहता हूँ उसका मुकाबला कर सकें। अभी आपने सुने महान साहित्यकार अमृत राय के विचार, जिनकी लेखनी ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट माटी सुगंध की ओर। इस सेगमेंट में आपको लेकर चलते हैं भारत के उन गांव की ओर जहां आज भी हमारे फोक ट्रेडिशंस जिंदा है। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक मेगा प्रोजेक्ट चला रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर, जिसका मकसद है भारत के गांव की कल्चरल मैपिंग करना ताकि हमारी विरासत को डॉक्यूमेंट किया जा सके। इसी कड़ी में हम आपको लेकर चल रहे हैं तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में स्थित परुत्तियूर गांव की ओर। परुत्तियूर गांव श्री वांचीनाथ स्वामी मंदिर के लिए फेमस है। मान्यता है इस मंदिर में विराजित शिवलिंग स्वयंभू है। गांव में हर साल नवंबर दिसंबर के महीने में तीर्थवारी उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आइए चलते हैं परुत्तियूर गांव की ओर। पुरुत्तियूर श्री वांचीनाथ स्वामी मंदिर के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में विराजित शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात स्वयं से उत्पन्न हुआ था। ये शिवलिंग विश्व का प्राचीनतम स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। इडली, डोसा, सांभर, रसम, वड़ा, बोंडा आदि यहाँ के मुख्य व्यंजन हैं। पुरुष धोती, लुंगी, शर्ट और कुर्ता पहनते हैं, वहीं महिलाएं पारंपरिक साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। पैर की उंगलियों में मिट्टी, पैरों में पहनने के लिए काप्पू और सिलंबू, बालों में पहना जाने वाला जड़े नागम और कानों में झुमके यहाँ की महिलाओं द्वारा श्रृंगार में उपयोग लाए जाने वाले कुछ विशेष आभूषण हैं। कई पौराणिक मान्यताओं, किंवदंतियों और कहानियों से जुड़े इस गांव में स्थित श्री वांचीनाथ स्वामी मंदिर में अन्य मंदिरों के विपरीत सूर्य ग्रहण के समय द्वार खुले रखने की परंपरा है। इस दौरान यहाँ शिवलिंग का विशेष अभिषेक भी किया जाता है। यहाँ स्थित नदी तट को मुनि तीर्थ नाम से जाना जाता है। गांव में प्रत्येक वर्ष नवंबर दिसंबर के महीने में तीर्थवारी उत्सव का आयोजन किया जाता है। साथ ही यहाँ मुनि तीर्थ तट पर मासी मगम उत्सव का आयोजन किया जाता है। धर्म और प्राचीनता की बुनियाद पर बसा हुआ ये गांव आज भी अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को संभाले हुए है। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके रिव्यूज हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। आपके पास भी अगर अपने गांव, एरिया या फोक ट्रेडिशन से जुड़ी कोई वाइटल इंफॉर्मेशन है तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। और जाते जाते देखिए हाल में हुए कुछ सांस्कृतिक आयोजनों की झलकियां। नमस्कार। भारत की प्राचीन कला को नई पीढ़ी किस प्रकार देखती है, इसका सुंदर उदाहरण देखने को मिला आईजीएनसी में आयोजित कला प्रदर्शनी विस्मृत कृतियां में। इस एग्जीबिशन में शामिल कलाकृतियां सलवान एजुकेशन ट्रस्ट के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई हैं। इस प्रदर्शनी में बच्चों की रचनात्मकता आनंदित और प्रेरित करने वाली थी। विस्मृत कृतियां प्रदर्शनी का आयोजन 1 से 5 नवंबर तक किया गया। आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी और असम के माजुली संस्कृति विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू का उद्देश्य है असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं के अकादमिक सहयोग, संयुक्त अनुसंधान और दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देना। इस अवसर पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई, जिसका विषय था माजुली की रासलीला, परंपरा, सौंदर्य शास्त्र और चुनौतियां। जापान के क्योटो प्रीफेक्चुरल असेंबली से आए एक डेलीगेशन ने आईजीएनसी का दौरा किया। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी से सार्थक संवाद किया। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। इसके साथ ही इस डेलीगेशन ने आईजीएनसी के विभिन्न विभागों के कार्यों को देखते हुए भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को सराहा। इस मुलाकात ने भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक साझेदारी को नए आयाम देने का अवसर दिया। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में वन डे ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 का शानदार आगाज हुआ।
कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी उपस्थित रहे। इसके साथ ही कई अन्य विशिष्ट अतिथिगण भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। यह विशेष आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है देश भर के जनजातीय उद्यमियों के लिए व्यावसायिक अवसरों का विस्तार करना, निवेश को प्रोत्साहित करना और नई साझेदारियों को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया और साथ ही ट्राइबल सेक्टर के विकास के लिए अपने विचार साझा किए। आईजीएनसीए के कलानिधि विभाग ने डॉक्टर मीना गौतम की पुस्तक आर्काइवल साइंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया एन ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव के लोकार्पण और परिचर्चा का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वी श्रीनिवास, सचिव भारत सरकार DARPG एंड DPPW उपस्थित रहे। इस अवसर पर कलानिधि विभाग के प्रमुख प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ भी उपस्थित रहे। आईजीएनसीए के नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग यानी NMCM ने खंभात, गुजरात की अनोखी कला आर्ट ऑफ बीड मेकिंग क्राफ्ट पर 2 दिवसीय कार्यशाला और व्याख्यान का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट विशेषज्ञ IIT गांधीनगर के प्रोफेसर आलोक कुमार कानूनगो, MSU बड़ौदा के प्रोफेसर अजीत प्रसाद और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पी अनवर हुसैन शेख भी उपस्थित रहे। स्वागत भाषण डॉक्टर मयंक शेखर, मिशन डायरेक्टर NMCM ने दिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत की 5000 साल पुरानी मन का निर्माण परंपरा को समकालीन शिल्प और पुरातात्विक धरोहर से जोड़ते हुए नए आयाम देना था। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।